Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry Grade 8, Lecture number 64. Today's topic is Isotopes of Uranium plus Society, Technology and Science, page number 56 and 57. In previous chapter, we have already discussed isotopes of hydrogen, isotopes of carbon, and isotopes of chlorine. There are three isotopes of hydrogen, that is protium, deuterium, and tritium. There are three isotopes of carbon, that is carbon 12, carbon 13, and carbon 14. And there are two isotopes of chlorine, that is chlorine 35 and chlorine 37. The most abundant isotope of hydrogen, that is protium, and the most abundant isotope of carbon is carbon 12, and the most abundant isotope of chlorine is, what is the most abundant isotope of chlorine? You know? Yes, that is chlorine 35. Chlorine 35 is the most abundant isotope of chlorine. Clear? Now we will discuss isotopes of uranium. Isotopes of uranium. You know, the most abundant isotope of कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. द मोस्ट abundant isotope ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटियम. अब इसकी abundance कितनी है इन नेचर, बताइए कितनी है. मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, आपको एक्सप्लेन करवाया है कितनी है. दैट इज़ 99%, 99 पॉइंट समथिंग. और कार्बन की कितनी है, दैट इज़ कार्बन 12, और उसकी परसेंटेज कितनी है, नेचुरल एबंडेंस कितनी है, दैट इज़ 98.98%. और क्लोरीन 35 की कितनी है, नेचर में उसकी एबंडेंस कितनी है, शाबाश बताए कितनी है, दैट इज़ 75.25. Yes, 75.25. Now, isotopes of uranium. Uranium is a radioactive atom. एलिमेंट है यूरेनियम जो है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. और व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है, रेज उससे रेडिएट होती है, दैट इज़ यूरेनियम. एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज़ 92. व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 92. एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज़ 92. There are three isotopes of uranium in nature. There are three isotopes of uranium in nature. That is uranium-234, uranium-235 and uranium-238. कौन कौन से आइसोटोप है, uranium-234, uranium-235 and uranium-238. Clear? The abundance of uranium-234 is 0.05%. Uranium-235 is 0.75%, and uranium-238 is the most abundant, 99.245%. Which one is the most abundant isotope of uranium? That is uranium-238. कौन सा है, uranium-238. कौन सा है, uranium-238. It is the most abundant which is present in nature, that is 99.245%. 99.245%. These are represented by U-234, U-235 and U-238. सबका एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज़ 92, 92, 92.
Isotopes are atoms of same element having same atomic number but different mass number. The mass number is different, that is 234, 235 and 238, and same atomic number, that is 92, 92 and 92. Clear? All the isotopes have 92 protons in their nuclei and 92 electrons in their orbits. You know the number of electron is always equal to the number of proton. Therefore, they have 92 electrons and proton each. And proton number show the atomic number. Therefore, the atomic number of uranium is 92. The number of neutron in uranium 234 is 142. You know, आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? दैट इज़ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर आपके पास 234 है, एटॉमिक नंबर आपके पास 92 है। 234 से 92 माइनस करें, इससे जो भी आएगा दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपके पास द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम दैट इज़ 142। और इसी फार्मूले पे आप यूरेनियम 235 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ 143। एंड यूरेनियम 238 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज़ 146। क्लियर? 146 कौन से फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो? दैट इज़ ए माइनस जी। ए माइनस सी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी फार्मूले पे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए इज़ द एटॉमिक नंबर एंड जी इज़, ए इज़ द मास नंबर एंड जी इज़ द एटॉमिक नंबर। फिर सुन ले, ए इज़ द मास नंबर एंड जी इज़ द एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर से एटॉमिक नंबर आप माइनस करें, इससे जो भी आएगा दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, टेबल में देख लें, टेबल 2.9 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम 234 का एटॉमिक स्ट्रक्चर देख ले, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज़ 142 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने हैं? 92। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें दैट इज़ U234 92। बेस पे 92 है, ऊपर 234 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 142। आइसोटोपिक एबंडेंस इज़ 0.05%। कितनी है? 0.05%। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ यूरेनियम 235। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देख ले, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज़ 142। इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आता है? 143। अब यूरेनियम जो है इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ 235 and 92, number of neutron that is 143, isotopic abundance that is 0.75%. Now the last one that is uranium 238. Uranium 238 is the most abundant isotope of uranium, और इसकी अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख ली तो इसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर दैट इज़ 92, न्यूट्रॉन नंबर दैट इज़ 146, और यूरेनियम उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू से करे, U238 एंड 92, number of neutron that is 146 and isotopic abundance that is 99.245%. 99.245%, which is the most abundant isotope of uranium. Clear? These are the isotopes of uranium, their atomic structure. Table 2.9. Clear? Now society, technology and science. Society, technology और साइंस में क्या कहते हैं? Estimation of the age of the
plant and animal remain by measuring the amount of radioactive decay products is called chemical or carbon dating. क्या कहते हैं इसको? कार्बन डेटिंग। किसी प्लांट की या एनिमल रिमेन्स जितनी भी है, अगर आप उसकी एज का पता लगाना चाहते हो, अक्सर अक्सर कहीं से कोई पार्ट मिलती है, कोई हड्डी मिलती है, कोई बोन मिलती है, ठीक है, या प्लांट्स मिलती है, तो अक्सर कहते हैं ना कि ये इतनी साल पुरानी है। तो ये एज का पता लगाना, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं? दैट इज़ कार्बन डेटिंग। एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। जितनी भी प्लांट की एज का पता लगाना हो या जितनी भी एनिमल रिमेन्स हो, ठीक है, तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड केमिकल और कार्बन डेटिंग। दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। यानी किसी चीज़ के एज का, किसी एनिमल का रिमेन्स का या प्लांट्स के एज का पता लगाना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं इसको? कार्बन डेटिंग। और ये हम कार्बन 14 जो है उसी से पता है, हेवीएस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन, उसी से उसके रेडिएशन जो होती है, रेडियो एक्टिव डिके से हम पता लगाते हैं। ए मोर रिसेंट मेथड इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ a radioactive isotope that is carbon 14 radioactive, जिससे रेडिएशंस होती है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप दैट जिससे रेडिएशन होती है, एंड दैट इज़ कार्बन 14। कौन सा है? कार्बन 14 इज़ यूज फॉर कार्बन डेटिंग टू फाइंड द एज ऑफ ए सब्सटेंस। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ deep sea sedimentation, clear, dates of volcanic and glacier activity. The age of uranium containing material can be determined by measuring the percentage of lead formed on a result of disintegration of uranium. आपको पता है जब आप यूरेनियम की फिजन करते हैं, दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, तो उससे लेड फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? लेड फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिजन। फिजन न्यूक्लियस को, बड़ी न्यूक्लियस को छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड फिजन। अब यूरेनियम इज़ कन्वर्टेड इनटू लेड। अब लेड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, और जितनी कन्वर्जन लेड की होती है उसी से यूरेनियम का पता चलता है। क्लियर? द एज ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मटेरियल कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ लेड फॉर्म एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। इससे कि कितनी यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन हुई है और कितने टाइम में ये डिसइंटीग्रेशन होती है, उसी से उसके यूरेनियम कंटेनिंग मटेरियल के एज का पता चलता है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। क्लियर? दैट इज़ ऑल अबाउट आइसोटोप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। अब अपने साथ होमवर्क नोट कर ले, शाबाश। डू प्रैक्टिस ऑफ atomic structures of isotopes of hydrogen, carbon and chlorine। फिर नोट कर ले, डू प्रैक्टिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की जितनी भी आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं।